Hello Gaurav, how are you? Hi Bhaiya, I'm good. How are you? Good. So we will continue with the fundamental series. Last Okay. time we covered about different kind of statements. Income, balance sheet, income statement, which is also known as P&L, and cash flow Yes. statement. We learned about EBITDA, we learned about top line, bottom line, and some other terms as well, right? Revenue, cash flow operation, net income, profit margins, gross margins, net margins, ये सब हमने मोटा मोटी समझा इनको चीजों को. After learning about these terms, I'll dig into some other areas. So as Okay. usual, I'll share my screen with you. So kindly hold on a bit. I'll share my screen with you. Just a second. Okay, Gaurav. So you are able to see my screen. Yes, Bhaiya. So kindly read it for me. What it says. Fundamental analysis, financial ratio analysis. Financial ratio analysis. So knowing how to calculate and use financial ratios is important for not only analysis but for investor, lenders, and more. Ratios allow analysts to compare various aspects of a company's financial statement against others in the industry to determine a company's ability to pay dividends and more. ठीक है? Ratios क्या होती है? Simple. Gaurav, how much marks you scored? Somebody says I scored 373. 373. It is no information basically. It is just a part of information. More complete information is I scored 373 out of 500. Let's say somebody says I scored 373 out of 500. So that will give me a picture. Okay, somebody scored around 75%, right? So मेरे को पता लग गया कि little short of 75% that person scored. अब ये चीज पता लगी when I told 373 out of 500. Now somebody says, now another person says I scored 750. Other person says I scored 750. Again incomplete information, but he said 750 out of 1000 I scored. 750 out of 1000 is exactly 75%. 373 out of 500 is 74.6%. So now we know that okay, both the students are scoring almost equally. One is rated out of 500, another one is rated out of 1000. So this is not exactly an example of ratios, but this using the percentage. So हम क्या कर सकते हैं? A ने स्कोर करा 74.6%, B ने स्कोर करा 75%. अब किसी ने 1000 में से स्कोर करा, 500 में से स्कोर करा, वो इमटेरियल हो जाता है. किसने 373 स्कोर करा या 74.6 स्कोर करा आउट ऑफ 100, डजंट मैटर. हमने उसको क्या करा? परसेंटेज टर्म्स में डिनोट कर दिया. तो रेशियोज से क्या होता है? रेशियोज से हम क्या कर देते हैं कि कोई भी फिगर जो होती है ना, कोई भी फिगर जो होती है वो हम रेशियोज के टर्म्स में कर देते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि किसी कंपनी ने कमाए 250 करोड़ रुपए, किसी कंपनी ने कमाए 500 करोड़ रुपए. बट अगर हम उनको ये कह देते हैं कि दोनों कंपनियों ने 25-25% प्रॉफिट कमाया, या दोनों का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेट से 20% है या 25% है, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? हमें पता लग गया कि एक कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना है, दूसरी कंपनी का इतना है. लेट से किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है और उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% है. तो हमें पता लग गया कि अरे ये जो दूसरी वाली कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% है वो अच्छी है. अपैरेंटली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन. हो सकता है कि जो 20% कमाने वाली कंपनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो और वो बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर की हो, और 27% वाली का मार्केट साइज बहुत पर्टिकुलर नीश सेगमेंट हो, और हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट कर रही हो. तो ये सब चीजें हम जब रेशियो के माध्यम से देखते हैं, व्हेन वी put these figures in terms of ratios, then it becomes comparable and easy to understand. दिमाग के लिए भी वो चीजें प्रोसेस करना आसान हो जाता है when we see things in purely in terms of ratios. Now let us look at the various ratios that we get to hear so often when we discuss stock investment and learn how we can benefit from our knowledge of financial ratios. ठीक है? तो I will be covering some important ratios that we use often or that we hear often. सबसे मेरा फोकस यहाँ पे क्या है कि मैं उन रेशियोज को बता रहा हूँ या उन टर्मिनोलॉजीज को बता रहा हूँ जो कि तुम न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे और वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप उन रेशियोज को यूज करते हुए देखते हैं लोगों को. तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या
टर्मिनोलॉजी समझनी होती है। The first ratio we'll look at is the liquidity ratio. Liquidity ratio attempts to measure a company's ability to pay off its short-term debts obligation. This is done by comparing a company's most liquid assets that can be easily converted to cash in short-term liabilities. तो एकदम से ये देखना है कि कंपनी को जल्दी से कोई बैंकरप्सी का तो डर नहीं है कि पैसे तो कहीं से आने करने नहीं है और उसको बहुत सारे पेमेंट देनी है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? लिक्विडिटी रेशियो से पता लगेगा। In general, the greater the coverage of liquidity asset to short-term liability, the better it is to clear a signal that the company can pay its debt that are coming due to the near future and still fund its ongoing operations. Liquidity measurement ratios, current ratio हम पहले भी cover कर चुके हैं, right? When we were discussing balance sheet, we covered the ratio. Current ratios, current assets divided by current liabilities, यानी so simple सी बात है भाई, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को एक बार साइड में रखो। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कंपनी को अभी हालत ऐसी है कि उसको जल्दी से लिक्विडिटी का इश्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने कोविड के टाइम में क्या देखा? कि सबसे पहला क्रंच क्या आया लोगों को? लिक्विडिटी का क्रंच आया कि अरे अरे पेमेंट्स आनी रुक गई, मेरे को यहाँ पे सैलरीज देनी है और देनी। तो वो कोई कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई थी, दिक्कत क्या आ रही थी कि कंपनी के पास में लिक्विडिटी का इश्यू हो गया था, पेमेंट्स आनी बंद हो गई थी और इधर स्टाफ को सैलरीज देनी है, तो बहुत से लोग सैलरीज तक भी नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरह के इश्यूज लिक्विडिटी की वजह से हो जाते हैं, और यही अगर उनके पास बैंक बैलेंस अच्छे रहते तो शायद ऐसी दिक्कत नहीं आती, और इन्वेंट्री भी वो नहीं सेल कर पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी को समझ सकते हैं। लिक्विडिटी मेजरमेंट रेशियोज, Quick ratio, also known as quick asset ratio or the acid test ratio, is a liquidity indicator that further defines the current ratio by measuring the amount of most liquid current assets there are to cover current liabilities. तो most liquid में क्या करते हैं? कैश एंड कैश इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस अकाउंट रिसीवेबल, ये कर देते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री को हटा देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री जल्दी से लिक्विडेट करना आसान नहीं होता। हर कंपनी के पास हो सकता है बहुत सारी डेड इन्वेंट्री भी पड़ी हो, स्लो मूविंग इन्वेंट्री पड़ी हो, उनको लिक्विडेट करना आसान नहीं होता है। आगे चलते हैं। लिक्विडिटी मेजरमेंट रेशियो, कैश रेशियो। The cash ratio is an indicator of a company's liquidity that further defines both the current ratios and the quick ratio by measuring the amount of cash equivalent or investment funds are in the current assets to cover current liabilities. मतलब इसके और ज्यादा रिफाइन कर दिया हमने। इसके अंदर हमने से क्या करा? रिसीवेबल को भी हटा दिया कि क्या पता किसी को पैसे लेने दे और वो 6-6 महीने तक देना, तो हमने उसको क्या करा? खाली कैश इक्विवेलेंट यानी कैश को, बैंक बैलेंस को, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जैसे कि किसी ने कोई लिक्विड फंड्स में लगा रखा है, शेयरों में लगा रखा है, जो कि बेचने के तीसरे दिन पैसे आ जाएंगे, तो उनको हमने सिर्फ कैश इक्विवेलेंट मान लिया, बस उतना ही पैसा हमने लिया कैश रेशियो के अंदर। उसके बाद में लिक्विडिटी मेजरमेंट रेशियो, कैश कन्वर्जन साइकिल। ये कैश कन्वर्जन साइकिल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? रॉ मटेरियल लेते हैं, डे 0 से शुरू हो। सबसे पहले आपने क्या करा? डे 0 में क्या करा? पहले रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल लेने के बाद में वो 5 दिन में आपके यहाँ पे आया। 5 दिन में आने के बाद में आपके यहाँ पे उसको चीजों को मैन्युफैक्चर करा। मैन्युफैक्चर करने के बाद में आपने क्या करा? उनको पैकेजिंग वगैरह पैकेजिंग करने के बाद में उनको सेल्स के लिए भेजा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भेजा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सेल हुई, करी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी कई तरह। मोटा मोटी आपका माल पहला खर्चा होने से लेके जो पूरा पैसा घूम के वापस कब आता है, वो होती है कैश कन्वर्जन साइकिल। यानी आपने माल कोई 10 रुपए की चीज 12 रुपए की तो बेची, 20% मार्जिन तो कमाया, लेकिन वो 20% मार्जिन कितने टाइम में कमाया, कितनी बारी पैसा घूमा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से बताता हूँ। एक कंपनी है, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल है 60 दिनों का, एक साल में है 365 दिन। उसका पैसा कितनी बारी घूमेगा? 6 बारी घूमेगा उसका पैसा। और वो कंपनी हर बारी उसका ग्रॉस मार्जिन है 10%, यानी वो 100 रुपए की चीज 110 रुपए की बेचती है, लेकिन उसका पैसा घूम गया 6 बारी, तो उसके क्या कमाई होगी? उसके कमाई होगी 60 रुपए की। उस 100 रुपए पे उस कंपनी ने 60 रुपए कमा लिए। तो वो कंपनी ने अपना 100 रुपए 10-10 बारी बेच के 60 रुपए कमा लिए, ठीक है। एक कंपनी है, वो 100 रुपए का माल बेचती है 120 रुपए का, यानी हर बारी 20 रुपए कमाती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के अंदर लग जाते हैं 8 महीने। तो वो पूरे साल में कितनी बारी कमा पाएगी? 1.5 टाइम्स उसकी साइकिल घूमी, तो उसने कमाए खाली 30 रुपए। यानी उसने जो पैसा लगा रखा है उस पर उसने खाली 30 रुपए कमाए। और कंपनी जिसकी कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो
6 टाइम्स है इन अ ईयर, तो वो ज्यादा कन्वर्ट कर पाएगी। ये मैं खुद भी देखता हूँ, जैसे कई बार मैंने अभी 1-2 साल पहले वो लिया, एयर प्यूरिफायर लिया, तो एयर प्यूरिफायर मैंने खरीदा, उससे पहले देखा मैंने इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने पुरानी थी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने पुरानी थी। तो अगर वो बात देखे तो मैंने कहा वो सोचो 6 महीने पहले तो मैन्युफैक्चर हुआ है, उससे पहले ही खर्चा करना शुरू कर देता बनाने वाला, उसके लिए जो प्लास्टिक और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और ये सब वगैरह करके मंगाए होंगे। तो मेरे पास पहुंचते पहुंचते उसको कितने महीने लग गए एंड यूजर तक पहुंचे। हो सकता है उसने, वो तो खैर एक्सपोर्ट की आइटम थी, तो हो सकता है जो चाइनीज सेलर था उसका, उसने जब भी बेचा होगा उसको, तो उसके लिए तो तभी वो कैश कन्वर्जन साइकिल कंप्लीट हो गई होगी। बट उसके अंदर साथ में एक वो भी होता है, डेट ऑफ इंपोर्ट भी मेंशन करी होती है, डेट ऑफ इंपोर्ट भी, मंथ ऑफ इंपोर्ट लिखा होता है। तो लेट से आज अगस्त चल रहा है, अगस्त में मैंने कुछ खरीदा और किसी ने उसको मंथ ऑफ इंपोर्ट मैंने पढ़ा कि फेब्रुवरी है, तो यानी फेब्रुवरी में मंथ ऑफ इंपोर्ट हुआ होगा, फिर उसने लेट से बॉम्बे उतरा होगा माल, तो बॉम्बे उतरने के बाद में उस गोडाउन में गया होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गया होगा, उसी में 1-2 महीना लग गया होगा, फिर 1-2 महीने डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़े रहने के बाद में लेट से मैंने जुलाई में खरीदा या अगस्त में खरीदा। तो कई बार इस तरह से मैं बहुत सारे इंपोर्ट की आइटम में देखता हूँ, मंथ ऑफ इंपोर्ट जो होता है वो 6-6 महीने पहले होता है, 4-4 महीने पहले होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में खास तौर से। तो ये सब चीजें आपको पता, हालांकि आपको लोगों को लगता है यार ये तो चाइना से 5,000 चीज की आई है, यहाँ पे 7,000 की बिक्री है, तो 40% मार्जिन हो गया। लेकिन आप कैश कन्वर्जन साइकिल भी देखो कि उन चीजों को बेचने में 6-6, 8-8 महीने भी लग रहे हैं, तो उसके पीछे जब आप देखते हो तो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर होता नहीं है, क्योंकि वो चीजें आसानी से बिकती नहीं है, उनको बेचने में थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लगता है। और उसी तरह से जैसे आज डी मार्ट का काम है, एवेन्यू सुपर मार्केट्स का, वो लोग क्या करते हैं, माल खरीदा, माल खरीदने के बाद अगर उनकी इन्वेंट्री उस माल की 60 दिनों में क्लियर हो रही है, लेट से उन्होंने अपने स्टोर्स के लिए कुछ भी माल खरीदा, ऑन एन एवरेज वो 60 दिन के अंदर अपनी इन्वेंट्री को रिसाइकल कर पा रहे हैं, और वो लेट से 5% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं। यानी ऑन एन एवरेज जो भी चीज उन्होंने 1,000 रुपए की खरीदी वो 1,050 रुपए बेच रहे हैं। लेकिन वो काम दिन साल में अगर 6 बारी करते हैं, तो उनको अपनी जो लागत है उसके ऊपर वो 30% मार्जिन हो गया उनका। तो साल वाले दिन वो 5-5% पे, लेकिन 6-7 बारी 8 बारी उन्होंने अगर अपना माल बेच दिया, तो उनका 30-35-40% उनका प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। तो जिन बिजनेसेस की कैश साइकिल फास्ट होती है, चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन उसके अंदर एनुअली प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये अलग से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, यू कैन रीड इट अगेन। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर ratios. This section will discuss different measures of corporate profitability and financial performance. These ratios, much like the operational performance ratios, give us the good understanding of how well the company utilizes its resources in generating profit and shareholder value. ये मोटा मोटी प्रॉफिटेबिलिटी है कि कमाई की क्या रेशियो है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स का एग्जांपल देके बताया कि उनका कौन पढ़ाई में कैसा है, तो उसको जानने के लिए मैंने क्या करा, परसेंटेज की कैलकुलेशन करी कि इस कितने परसेंट नंबर आए, वो एक हम पढ़ाई के लिए स्कोर कार्ड लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम अलग अलग रेशियोज देखते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी इज वाइटल फॉर both the survivability of the company as well as the benefit received by shareholder. It is these ratios that can give insight into the all important profit. तो प्रॉफिट को कैसे एनालाइज करना है, प्रॉफिट को कैसे देखना है, किसी कंपनी ने 500 करोड़ कमाए, किसी ने 300 करोड़ कमाए, किसी ने 5,000 करोड़ कमाए, तो उसको किस तरह से देखना है, क्योंकि उस कंपनी ने कितना पैसा लगा रखा है, उसको कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी उसने सेल जनरेट करी, कितनी लोगों ने उसे लोन ले रखा है, क्या है क्या नहीं है, लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है। अब तो वो सब कैसे जानेंगे, वो देखने के लिए हम वेरियस रेशियोज यूज करते हैं, विच आर टोटलिटी में उनको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब आके एक एक करके देखते हैं, जिससे कि हम कंपैरेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। In this section, we will look at the 4 important profit margin. We display the amount of profit a company generates on its sales at the different stages of income statement. We will also show you how to calculate the effective tax rate of the company. The last 3 ratios covered in the section: return on assets, ROA, return on equity, ROE, or return on capital employed, ROE, details how effective a company is at generating income from its resources. तो कंपनी के पास जो पैसा है उसके ऊपर वो कितनी इफेक्टिवली पैसा जनरेट करती है, ये सब इन रेशियोज से पता लगता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। एक कंपनी ने 100 करोड़ की सेल्स करी, पूरा सब कुछ पे पू करने के बाद में, मतलब खर्चे वर्चे सारे देने के बाद में उसको 10 लाख रुपए बचे, तो वो
इसका मतलब हो गया कि सॉरी 10 करोड़ रुपए बचे, 100 करोड़ की सेल थी, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, दैट मीन नेट प्रॉफिट इज 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया नेट प्रॉफिट प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। प्री टैक्स प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेट से कंपनी ने 15 करोड़ रुपए प्री टैक्स कमाए और 5 करोड़ टैक्स दे दिया, तो हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? बिफोर पेइंग ऑफ टैक्सेस। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? नेट इनकम अपॉन नेट सेल्स। ये हम दोबारा हो गया, ये दोबारा आ गया बाई चांस। हाँ, नेट रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ द कंपनीज, दिस रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर इफेक्टिव टैक्स रेट है टोटल टैक्स एक्सपेंस अपॉन प्री टैक्स इनकम। अब क्या होता है, इनकम टैक्स भी बड़े सारे नामों से जाना जाता है। इनकम टैक्स है, सरचार्ज है, ये लेवी है, वो लेवी है, ये मैट है, फला ढिमका। एज एन इन्वेस्टर हमें कोई लीगल उसके अंदर थोड़ी एंगल जाना है कि लीगली क्या होता है। हम क्या देखते हैं, यार कंपनी ने 100 रुपए कमाए और सरकार को अलग अलग नाम से 24 रुपए दिए, कभी टैक्स के नाम से, कभी ये सरचार्ज के नाम से, फला ढिमका, जो भी नाम से, तो हम क्या कहेंगे, जो 24% इफेक्टिव टैक्सेशन है। कहीं पे कंपनी को सब्सिडी मिल रही है, कहीं पे उसको कैशबैक वापस मिल रहा है, कहीं पे जो भी मिल रहा है, हम जो भी सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में अगर कंपनी ने 100 रुपए की कमाई के पीछे 24 रुपए दिए, तो इफ कंपनी पेज 24 आउट ऑफ 100, देन वी विल से इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन द कंपनी इज 24%। सो ये भी सिंपलिस्टिक वे में प्रेजेंट करना हो गया। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स, द रेशियो इंडिकेट्स हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज रिलेटिव टू टोटल एसेट। द रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो इलस्ट्रेट हाउ वेल मैनेजमेंट इज एम्प्लॉइंग द कैपिटल company's total assets to make a profit. The higher the return, the more efficient management is in utilizing the asset base. The ROA, return on asset ratio, is calculated by comparing net income to average total asset and expressed as a percentage. तो ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट इज नेट इनकम बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो इससे क्या, अब देखो, दो आपने कंपनी कंपेयर करनी है। लेट से कोई पेंट की कंपनी है, नाम भी ले लेते हैं, जैसे मान लो एक तरफ एशियन पेंट्स है, एक तरफ आपके इंडिगो पेंट्स है। एशियन पेंट्स बहुत बड़ी है, इंडिगो पेंट्स बहुत छोटी है। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब ये थोड़ी है कि हमने तो बड़ी देखी और बड़ी में इन्वेस्ट कर दिया, नॉट नेसेसरली। अब हम इनका कंपेरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या दिमाग में होना चाहिए कि कौन ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो कौन ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है? अरे भाई एशियन पेंट ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर, नहीं, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ साइज, कि एक कंपनी के पास में 100 करोड़ का एसेट है, एक कंपनी में पास में 1000 करोड़ का एसेट है। इन एशियन पेंट्स या इंडिगो की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा मैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों ही अपने आप में बड़ी कंपनी है, लेकिन साइज में एक कंपनी दूसरे से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो उसको आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स कर दिया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। तो वो जो परसेंटेज आती है, तो परसेंटेज आई लेट से 1 की आई 18%, 1 की आई 22%। तो अब मेरे को पता है कि यार 22% वाली ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है ऑन एसेट्स अवेलेबल। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक कंपनी के पास में एसेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब, आपने एक साइड हमने क्या पढ़ा था, इक्विटी, लाइबिलिटी, और दूसरी साइड होते हैं एसेट्स, राइट? यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, एसेट लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे। शेयर होल्डर ने क्या पैसा लगा रखा है? जैसे मेरी कंपनी है, मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ, ओनर भी, तो उस ओनर ने क्या पैसा लगा रखा है? तो शेयर होल्डर इक्विटी क्या होगी? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वो जो पैसा है, तो पूरा मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है? देखते, मालिकों ने पैसा लगा रखा है 200 करोड़ और प्रॉफिटेबिलिटी हुई 60 करोड़। तो उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होगी? 30%। वो चाहे बाकी चीजों के लिए उसने लोन ले रखा है, शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं मतलब, मालिकों ने 200 करोड़ रुपए लगा रखा है और उनको 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो होगी वो 30% होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है एक कंपनी के बारे में जानने के लिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या कमा के दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी हद तक रिटर्न ऑन इक्विटी ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो बाय एडिंग अ कंपनीज डेट लायबिलिटीज और फंडेड डेट टू इक्विटी टू रिफ्लेक्ट द कंपनीज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें हमने क्या करा, उसमें हमने खाली शेयर होल्डर लाइबिलिटी ली थी। इस केस में हमने क्या ले लिया, साथ में हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जैसे किसी कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं, किसी ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इश्यू कर रखे हैं, किसी से लेट से किसने किसी गवर्नमेंट एजेंसी से 10 साल का लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, तो वो भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट मानते हैं। तो उसको भी हम तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट टॉप लाइन तो हमारी सेम रहती है रेशियो निकालते हो कि हम नेट प्रॉफिट यूज करते हैं, पर नेट प्रॉफिट में अब लास्ट टाइम हमने क्या करा था,
शेयर होल्डर्स इक्विटी खरीदी या शेयर होल्डर्स कैपिटल करे था, अब हम क्या करते हैं शेयर होल्डर्स प्लस डेट कैपिटल ऑल्सो, तो वो ऐड कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत अच्छा मेजर होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए, तो इसको आरओसीई करके पॉपुलरली देखा जाता है और ये काफी फॉलो करी जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। By comparing net income to the sum of company's debt and equity capital, investor can get a clear picture of how the use of leverage impact the company's profitability. Financial analysis is considered the ROCE measurement to be the more comprehensive profitability indicator because it gauges management's ability to generate earning from a company's total pool of capital. तो खाली शेयर होल्डर कैपिटल थोड़ी है, मान लो 200 करोड़ शेयर होल्डर की कैपिटल थी, 500 करोड़ का लोन ले लिया, तो अब वो देखना होगा कि 700 करोड़ पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो टोटलिटी में देखने के लिए आरओसीई जो होती है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो अगर 5-10 कंपनियां कंपेयर कर रही हो तो ज्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं वो आरओसीई को बहुत तवज्जो देते हैं, यानी बहुत उसको अटेंशन देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी जस्ट वी डिस्कस, एवरेज डेट लायबिलिटी प्लस एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। एवरेज में बेसिकली क्या करते हैं हम, एंड ऑफ द ईयर को लेने के बजाय शुरू साल के पहले लेते हैं, आखिर में लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि लेट से कैपिटल एम्प्लॉयड साल के शुरू में 160 करोड़ थी, बाद में कुछ चेंजेस हुए और हुए, नई आई पुरानी गई फला ढिमका करके, वो बाद में रह गई 200 की, तो हम बीच में क्या लेंगे 160 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, तो 180 हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं। ठीक है। डेट रेशियो इंट्रोडक्शन। डेट रेशियो, अब डेट रेशियो से क्या पता लगता है कि बेसिकली हम उनकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं कि भी कंपनी के पास पैसा कितना और पैसे चुकाने कितने हैं, उसकी कहीं कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, उसको कितनी स्ट्रांग है अंदर से, कितनी सॉलिड है। जैसे कहते हैं ना किसी के पास उधार बहुत ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं कि अंदर से खोखला है, तो कंपनी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, अंदर से कंपनी कितनी सॉलिड है, वेदर इट इज हॉलो इनसाइड और स्ट्रांग इनसाइड। These ratio give users a general idea of the company's overall debt load as well as its mix of equity and debt. Debt ratios can be used to determine the overall level of financial risk a company and its shareholder face. In general, the greater the amount of debt held by a company, the greater the financial risk of bankruptcy. सबसे बड़ा बैंकरप्सी का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा बैंकरप्सी का कारण हिस्टोरिकली देखा जाता है कि आपने उधार ज्यादा ले रखा है, आपने पैसा उधार ज्यादा ले रखा है और उसको चुकाने के लिए आपके पास पैसे होते नहीं है, तो एक टाइम में आप हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो दैट इज बैंकरप्सी, व्हेन यू डोंट हैव इनफ एसेट्स टू पे योर डेटर्स। The ratios covered in this section include the debt ratio, which gives the general idea of the company's financial leverage, as does the debt to equity ratio. The capitalization ratio details the mix of debt and equity, while the interest coverage ratio of the cash flow to the debt ratio show how well a company can meet its obligations. ठीक है, तो डेट इटसेल्फ इज नॉट बैड। जैसे कोई कंपनी है उसने 10% पे लोन लिया, जैसे वही मैं एग्जांपल दे रहा था कि इस कंपनी की साइकिल है 6 टाइम्स, कैश कन्वर्जन साइकिल है 6 टाइम्स, 5% पे वो काम करती है। कंपनी ने 10% का लोन लिया, 10% पे लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, विच इज प्रैक्टिकल, और उसने जो माल बेचा वो कितनी बारी बेच लिया, 5-5% करके 6 बारी बेच लिया, तो कितनी कमाई हो गई 30% की। तो वो लोन लेना बुरा है या अच्छी बात है? अच्छी बात है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 10% का खर्चा करके 30% अगर प्रॉफिट जनरेट करिए तो लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक खतरा भी है कि अरे ये प्रॉफिट मार्जिन अगर एक शार्पली डाउन आ गया तब क्या करोगे? अगर पैसा इन्वेंट्री में फंस गया और 1 साल तक लिक्विडेट नहीं हुआ तब क्या करोगे? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो डेट इज अ लेवरेज जो होती है ना, लेवरेज 2 धारी तलवार होती है, ये आपको बहुत ऊपर ऑर्बिट में भी पहुंचा सकती है, बहुत आपको तरक्की करने में मदद कर सकता है, उधार से आप पैसे में अपने आप को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आप फंस गए और एक बार लिक्विडिटी क्रंच आ गया तो आपकी सारी कमाई उधार चुकाने में और ब्याज चुकाने में चली जाती है और कंपनी बहुत बारी बैंकरप्ट हो जाती है। डेट रेशियो, द डेट रेशियो कंपनी द कंपनीज टोटल डेट टू इज टोटल एसेट्स। डेट रेशियो इज टोटल लायबिलिटीज बाय टोटल एसेट्स। लेट्स से कंपनी के अंदर शेयर होल्डर फंड से 200 करोड़, टोटल लाइबिलिटी है 500 करोड़, टोटल एसेट्स है 700 करोड़, तो डेट रेशियो कितनी होगी 500/700, दैट इज योर डेट रेशियो। तो हम क्या कहेंगे कि भाई कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है। अब एक सिचुएशन सोचो, कंपनी के पास लाइबिलिटी है खाली 100 करोड़ की और टोटल एसेट्स हैं 1000 करोड़ के, तो डेट रेशियो 0.1 की हुई, यानी वो बहुत अच्छी रेशियो हुई। और यही सोचो कंपनी के पास में एसेट्स तो है बहुत कम और लाइबिलिटी है ज्यादा, तो वो डेट रेशियो नेगेटिव हो, मतलब बड़ी हो जाएगी, तो यानी दैट मींस कंपनी डू नॉट हैव इनफ एसेट्स टू सर्विस इट्स लाइबिलिटीज, तो दैट इज अ
रिस्क फैक्टर, ये ह्यूज रिस्क फैक्टर व्हेन यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टोटल लाइबिलिटीज बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। देखो होता है कि एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शेयर होल्डर लाइबिलिटीज, उसके नीचे शेयर होल्डर एसेट्स, उसके यानी जो कंपनी की कैपिटल जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका लाइबिलिटीज, तीसरी साइड हो गया एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर क्या है, करंट एसेट्स है और लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है। अब करंट एसेट्स में क्या हुआ, कंपनी के ने पैसे किससे लेने थे और उसके पैसे डूब गए, और अब कंपनी के पास क्या बची, लैंड बची है, प्लांट एंड मशीनरी बची है। वो क्या है, स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी, उनकी बेचने जाओगे तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कोई कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई नीश सेगमेंट बनाती है, उसको कौन खरीदेगा, कोई ऐसे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, अरबों रुपए का प्लांट है और कोई खरीदना नहीं चाहता उसको, तो यानी वो सब कुछ जीरो हो गया। अब तो या कमिंग बैक टू दिस डेट इक्विटी रेशियो, तो अल्टीमेटली अगर आपको लाइबिलिटीज पे करनी है, अगर आपको लाइबिलिटीज पे करनी है तो कैसे करोगे, लाइबिलिटी तो पे करनी है। अगर मेरे को सॉल्वेंट रहना है, अगर मेरे को बैंकक्रप्ट नहीं होना, तो मेरे को लाइबिलिटी तो पे करनी है। तो लाइबिलिटी पे करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एसेट्स अपने जो बेच, मेरे पास एसेट्स है उससे मैं लाइबिलिटी पे करूंगा। किसी को कोई मतलब नहीं है मेरे एसेट से, मेरा प्लांट एंड मशीनरी थी, किसने पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे मार लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली मेरे पास जो पैसा है उससे मैं अपनी लाइबिलिटी पे करूंगा। तो ये देखा जाता है डेट इक्विटी रेशियो, कि आपने डेट और इक्विटी कितना कितना है। अगर आपकी लाइबिलिटी साइड में जो पैसा है आपने उसमें डेट का पोर्शन कितना है और शेयर होल्डर का पैसा कितना है, तो डेट इक्विटी रेशियो का हेल्दी होना चाहिए। बहुत ज्यादा लाइबिलिटी अगर है, यानी अगर लेट से 200 करोड़ तो आपकी इक्विटी है और आपने हजारों करोड़ के लोन ले लिए, तो ये बहुत रिस्की हो गया। थोड़ा बहुत कुछ भी गड़बड़ होती है, थोड़ा बहुत घाटा आता ही, आपकी कैपिटल साफ होगी। घाटा आएगा तो सबसे पहले क्या साफ होगी, आपकी कैपिटल साफ होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपकी खुद की एसेट है 200 करोड़ रुपए, आपने उधार ले रखा है 800 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपके इस साल घाटा आ गया 100 करोड़ रुपए, घाटा कहां से दोगे आप, घाटा आपकी कैपिटल में से कम होएगा। आपकी जो कैपिटल थी 200 करोड़ रुपए, अब वो माइनस फिगर जो जाएगी तो वो रिजर्व एंड सरप्लस आपके 100 करोड़ से घट जाएंगे। जो शेयर होल्डर इक्विटी थी वो 200 करोड़ से 100 करोड़ की हो गई। अगले साल घाटा आ गया 150 करोड़ रुपए, अब कंपनी की आ गई, कंपनी की बैलेंस शीट आ गई नेगेटिव में। अब कंपनी के पास में एसेट रह गए 750 करोड़ रुपए और लाइबिलिटीज हो गई 800 करोड़ रुपए, तो कंपनी 2-3 साल में ही घाटे में आ गई, राइट। तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था ना कि कई कंपनियों में बहुत ज्यादा डेट है या कई कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो उन कंपनियों को बड़ी आसानी से आप अपने एनालिसिस के द्वारा, इनिशियल एनालिसिस से ही उनको हटा सकते हैं। कैपिटलाइजेशन रेशियो, लॉन्ग टर्म माइनस टर्म, लॉन्ग माइनस टर्म डेट, लॉन्ग माइनस टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो इसके अंदर हमने कैपिटलाइजेशन में लॉन्ग टर्म शेयर्स को भी ऐड कर लिया है, पर ठीक है, यू जस्ट रीड इट, नॉट सो। डेट इक्विटी रेशियो मेनली देखी जाती है। डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कंपनी के अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी को इंटरेस्ट दे पे करना है साल वाले दिन 10 करोड़ का, और उसकी कमाई है 40 करोड़ की। तो आदमी कहता है ठीक है, अगर जब अलग कमाई थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी तो इंटरेस्ट दे पाएंगे। यहीं पे क्या होता है, एक कंपनी ने करा, उसकी इंटरेस्ट बर्डन है 10 करोड़ की, इंटरेस्ट बर्डन है 10 करोड़ की और कमाई है उसकी 12 करोड़ की। इंटरेस्ट बर्डन है 10 करोड़ की, कमाई है खाली 12 करोड़ की। एकदम से कमाई थोड़ी सी कम हो गई, कमाई थोड़ी सी कम हो गई और कमाई जाएगी लेट से 5 करोड़ की, 12 करोड़ से 5 करोड़ आ गई और इंटरेस्ट बर्डन कितनी थी उसकी 10 करोड़ की। तो अब एकदम से क्या होगा, उसको इंटरेस्ट देने के लिए पैसे ही नहीं है। अब इंटरेस्ट देने के लिए पैसे नहीं, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, कोई एसेट लिक्विडेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसको फर्दर लोन लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी को 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट सालाना पे करना है, सो समबडी वुड वांट कि हाँ उस कंपनी को 500 करोड़ की कमाई होनी चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट कवरेज अच्छे से कर सके, ताकि नुकसान में ना जाए कंपनी। कैश फ्लो टू डेट रेशियो, अगेन की कैश फ्लो कैसा आ रहा है, अगेन फर्दर मोर एनालिसिस ऑफ कैश एंड डेट। दीज रेशियोज लुक एट हाउ वेल, फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रेशियोज। ये सेल्स टू फिक्स्ड एसेट देखा जाता है कि कंपनी ने बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी सब कुछ लगा लिया, तो उसकी सेल्स कैसी है। सेल्स किसके कंपैरिजन में देखा जा रहा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी के एसेट्स और सेल का कंपैरिजन हो रहा है।
उसके बाद रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये हर एक केस में नहीं देखा जाता, पर कई कई बिजनेस सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां पे ऐसा देखा जाता है। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है, तो आईटी इंडस्ट्री में ये देखा जाता है कि लेट्स से विप्रो के पास में 5,000 एम्प्लॉइज है, टीसीएस के पास में 25,000 एम्प्लॉइज है, तो वो ऐसा कंपैरिजन जनरली होता है। सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है, मेडिकल में भी कोई हॉस्पिटल है तो उसमें भी ऐसा शायद देखा जाता होगा, आई एम नॉट टू श्योर। उसके बाद में ऑपरेटिंग साइकिल्स, ऑपरेटिंग साइकिल वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल कि कैश कितनी जल्दी घूमता है उसकी मैं वैल्यू भी आपको बता चुका हूं। उसके बाद कैश फ्लो इंडिकेटर रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो रेशियोज, फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये सब भी मोटा मोटी हम कवर कर चुके हैं व्हेन वी वर कवरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट, राइट। उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये भी मोटा मोटी हम कर चुके, ये भी कर चुके। फ्री कैश फ्लो व्हेन वी वर डिस्कसिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसके बाद डिविडेंड कवरेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म डेट रेशियो, अगेन मोर रेशियोज, कैश फ्लो इंडिकेटर रेशियोज, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हैव आई कवर्ड? आई डोंट थिंक अर्निंग पर शेयर इज वेरी नहीं हुआ इंपॉर्टेंट। भैया, नहीं हुआ। अर्निंग पर शेयर मैं बता देता हूँ, आई थिंक वी विल बी कवरिंग इट फर्दर अहेड, बट आई विल टेल यू एट दिस स्टेज। अर्निंग पर शेयर, एक कंपनी ने लेट्स से 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, पूरे साल में 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया आफ्टर पेइंग टैक्सेस, आफ्टर पेइंग टैक्सेस 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और उस कंपनी ने 10 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़ शेयर इशू कर रखे हैं। A company has earned annual profit of 10 crores after paying all the taxes and all, and company has issued total 1 crore shares. उस कंपनी के 1 करोड़ शेयर मार्केट में, तो उस कंपनी का ईपीएस कितना हो जाएगा? 10 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू अर्निंग पर शेयर। यानी 1 करोड़ शेयर के पीछे 10 करोड़ रुपए कमाए, यानी एक शेयर के पीछे 10 रुपए कमाए, तो दैट गिव्स यू एन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, फर्दर उसको कैलकुलेट करता है। कंपनी ने कमाए, अर्निंग पर शेयर कितना था? 10 रुपए, पर कंपनी सारा का सारा डिविडेंड नहीं देगी ना। कंपनी ने क्या करा, या नहीं देना चाह रही मान लो, तो कंपनी ने क्या करा, उस 10 रुपए में से 4 रुपए डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होगी उसकी? वो होगी 40%। यानी 10 में से 4 रुपए दिया, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो is the ratio or the proportion or the amount of profit that is given out of earning per share. The amount of dividend paid out of earning per share is your dividend payout ratio. The last section which we will feel most important is stock investor look at wide array of ratio when you can use. तो इसके अंदर आगे देखते हैं इन्वेस्टर कौन कौन सी रेशियोज देखेगा। टेंजिबल बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल टेंजिबल एसेट, टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। एक कंपनी ने शेयर इशू करे, लेट्स से उसका शेयर चल रहा 50 रुपए का, अब उसके टोटल एसेट्स का हमने देखा, टोटल एसेट्स की टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपए की, टोटल वैल्यू है उसके एसेट्स की 100 करोड़ रुपए की। यानी कंपनी अगर अपने माल को सारा बेचे तो उसको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, और उस कंपनी ने 50 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, तो पर शेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 200 रुपए। यानी अगर कंपनी के 50 लाख शेयर, जो 50 लाख शेयर्स हैं, उनको 200 रुपए पर शेयर मिलेगा। तो ये बड़ी बार यूज होता है। कई बार क्या होता है, कंपनी की वैल्यू जो होती है ना, ड्यू टू सम रीजंस इट गोस बिलो इट्स टेंजिबल वैल्यू, यानी लिक्विड एसेट्स के लिए, तो उस केस के अंदर ये वाला फैक्टर काम आता है। उसके बाद नेट इनकम माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक माइनस एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अर्निंग पर शेयर, ये अर्निंग पर शेयर जो अभी मैं बता रहा था, इट ऑलरेडी कवर्ड। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट का टोटल होता है उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू होगी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, तो एक कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपए का, तो पढ़ते हैं, देखो क्या वैल्यूएशन रेशियो कंपनी, द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक्सप्रेस एज मल्टीपल इज ट्रेडिंग, how many times a company's stock is trading per share compared to company's book value per share is an indication of how much shareholder are paying for the net assets of a company. ये कॉन्सेप्ट वैसे काफी बड़ा है, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है, उसका जैसे हमने अर्निंग पर शेयर करी थी, अर्निंग पर शेयर करी थी, तो अर्निंग का पर शेयर होल्डर की क्या अर्निंग है उससे करा था। अभी हमने क्या करा, कंपनी की बुक वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं 10 करोड़, तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या होगी? बुक वैल्यू पर शेयर होगी 10 रुपए की। मार्केट में उस कंपनी का रेट चल रहा है 30 रुपए, बुक वैल्यू कितनी? 10 रुपए, 10, प्राइस चल रहा है 30 रुपए, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी होगी? प्राइस टू बुक वैल्यू होगी 3, प्राइस इज 30, बुक वैल्यू इज 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 होगी
प्राइस टू बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू होगी 3। तो कई कंपनियां जो होती है ना जिसके अंदर बुक वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि लेट्स से टीसीएस का एग्जांपल ले लो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एसेट्स मायने नहीं रखता, बुक वैल्यू मायने रखती है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं मे बी डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा होती है। जो स्लो कंपनीज होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती, उनका प्राइसेस जो है बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो रेशो, तो वही ऑपरेटिंग कैश फ्लो से रिलेटेड है। स्टॉक प्राइस पर शेयर टू अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीई रेशो। पीई रेशो इज द सिंगल मोस्ट हाईएस्ट यूज्ड रेशो इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। पीई रेशो, अगर मैं कोई शेयर है वो मेरे लिए 5 रुपए साल का कमाता है, उसके लिए अगर मैं 100 रुपए देता हूं, तो मैं अपनी अर्निंग से कितना गुना दे रहा हूं, अर्निंग से कितना 20 गुना दे रहा हूँ? 5 रुपए कमाने के लिए अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूं, तो मैं कितना गुना दे रहा हूँ? 20 टाइम्स दे रहा हूँ। 20 100 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स मी 20। तो ये जो 20 आया, ये ईपीएस आया, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग इंपॉर्टेंट टू यूज, बट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ वाइडली इट इज यूज्ड। अर्निंग पर शेयर, कि एक अपनी इन्वेस्टमेंट के पीछे वो कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अर्निंग क्या हो रही है वो ईपीएस कैलकुलेट करता है। वो क्या हो गया? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर से आपकी पी रेशो निकल आती है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि आप पैसा कितना दे रहे हो और उसके पीछे कमाई क्या कर रहे हो। पीईजी रेशो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। फिर आगे क्या करते हो? प्राइस टू अर्निंग, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 5 रुपए की कमाई के पीछे 100 रुपए दे रहे हो आप, लेकिन अगर ग्रोथ बहुत अच्छी है, अगर आपको पता है 5 साल बाद में जो 5 रुपए की कमाई है बढ़कर 20 रुपए हो जाएगी, तो प्राइस तो आज आप दे रहे हो, और वो ग्रोथ रेट कितनी है? तो ग्रोथ रेट अगर 5 साल में आपकी 5 रुपए की कमाई 20 रुपए होने वाली है, अगर ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? ग्रोथ को भी इंक्लूड कर लेते हैं अपनी रेशियो के अंदर। तो फिर वो क्या होती है? पीईजी रेशियो होती है, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो पी रेशियो ग्रोथ के सामने कैसी है, तो उसको पीईजी रेशियो होती है। तो जहां पे अगर शेयर में ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो वो शेयर में अगर ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो वो आप उसके लिए शायद ज्यादा प्राइसेस देना आपके लिए संभव होगा। प्राइस टू सेल्स रेशियो, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन रेशियो। सो इस तरह से ये सारी रेशियोज देख के हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।